Hare Krishna. Welcome you all in Sarvam Bhagavatam class. Today we shall be taking the text 14 or 15th, yeah, I think. Yeah, 14th or 15th chapter of Srimad Bhagavatam, Canto 1. For that we'll have little Mangalacharan. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva हरे नाम संकीर्तन एक नमो सबकी जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय निताय गौर परिमानंदे हरे हरे बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी So Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 15 Text 14 Yad bandhavah kurvalabdhim anantaparam eko rathena tateraham tirtha sattvam pratyahritam bahudhanam cha maya paresham tejaspadam manimayim cha hrita sirobhya Yad bandhavah kurvalabdhim anantaparam eko rathena tateraham tirtha sattvam प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृत्तशिरोभ्यः यदबान्धवः कुरुबलाब्धिमनम् अनन्तपारम् एको रथेन ततेरहं तीर्यसत्त्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृत्तशिरोभ्यः What meaning? यत बांधवः जिनकी मैत्री मात्र से कुरबल अब्धिम कुरों की सैन्य शक्ति रूपी सागर को अनंत पारम दुर्लभ्य एक एकाकी 14 नो चैप्टर 15 Chapter 15, 14. Text 14. Can I go ahead? Yes, go. अनंत पारम दुर्लभ्य एकाकी रथेन रथ पर आरूढ़ होकर ततरी पार करने में समर्थ था अहम मैं अतीर्य अजेय सत्वम अस्तित्व प्रत्याहृतम वापस ले आया बहु अत्यधिक धनम धन च भी मया मेरे द्वारा परेशान शत्रु का तेज आस्पदम नो तेज आस्पदम तेज प्रकाश का स्रोत मणिमयम मणियों से अलंकृत च भी हृतम बलपूर्वक लाया गया शिरोभ्य उनके शिरों को ट्रांसलेशन कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे फलतः वह दुर्लभ थी किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गांवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जडित थे सो हु कैन रीड द परपोर्ट स्मॉल परपोर्ट हरि बोल हरे कृष्ण विजय प्रभु विजय प्रभु you have books with you the Srimad Bhagavatam Canto 1 you are mute प्रभु जी I am reading in read purport but English प्रभु जी not Hindi no problem any language we are reading all language we are reading okay प्रभु जी
purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji. On the Kauravas side, there were many stalwart commanders like Bhishma, Drona, Kripa, and Krishna, and their military strength was an insurmountable as the great ocean, and yet it was due to Lord Krishna's grace that Arjuna alone, sitting on the chariot, could manage to vanquish them one after another without difficulty. There were many changes was commanders on the other side, but on the Pandavas side, Arjuna alone on the chariot driven by Lord Krishna could manage the whole responsibility of the great war. Similarly, when the Pandavas were living at the palace of the Virata incognito, the Kauravas picked a quarrel with King Virata and decided to take away his large number of the cows. While they were taking away the cows, the Arjuna fought with them incognito and was able to regain the cows along with some booty taken by force. The jewel set on the turquoise of the royal order. Arjuna remembered that all this was possible by the grace of the Lord. Finish, Prabhu. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी निति नामिने नमः आचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायने गौर कथा दामोदाय नगर रमताणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष पुण्यवादी पासित तारणे श्री चैतन्य मनोभीष्टमस्थापित मेन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु सदापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांक्षा कल्पतरुवेश्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक अर्जुन याद कर रहे हैं भगवान की असीम कृपा और अपने भाई को बता रहे हैं कि याद है जब हम अज्ञातवास में विराट के राज्य में छुपे हुए थे तब कौरवों ने विराट पर हमला किया और उसकी लाखों गायों को छोड़ा करके ले गए। इससे पहले बता दूं आपको कि जब अर्जुन स्वर्ग में थे और इंद्र का आधा सिंहासन पर बैठते थे तो वहाँ नर्तकियाँ जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं मेनका, रंभा, तिलोत्तमा और बहुत सारी जो है नाच करती थी। और जब इंद्र के बगल में अर्जुन बैठे रहते थे तो उनमें से एक अप्सरा को अर्जुन से प्यार हो गया। जब नृत्य समाप्त हो गया तो अर्जुन के पास आई, कहने लगा देखिए मैं आपसे सहवास करना चाहती हूं, आप मेरे महल में आइए। अर्जुन ने उनके पैर छुए कि तुम मेरी मां के समान हो, ये मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसको बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने उसको श्राप दे दिया, जाओ मेरा तुम्हें श्राप है कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक बनकर रहो। और जब अर्जुन नीचे आए, अपने भाई को बताया कि मेरे को कर्ज मिला है, तो उन्होंने एक सोची ठीक है 12 साल गुजर गए हैं, 13वें साल में अज्ञातवास जाना है और छुप के रहना है। तो ऐसा है कि हम जो है विराट के धोमे से बात की, बड़ी लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट करूं कि
युधिष्ठिर क्या बनेंगे, भीम क्या बनेंगे। भीम तो खाने पीने के शौक है, तो उनको किचन सौंप दिया गया। कीचक के साथ कोई किचन सौंप दिया गया। ये बर्नल जो अर्जुन बना, जो उनकी जो द्रौपदी थी वो शैलेंद्री बनी, और वो वहाँ की रानियों की जो है सेज क्या नाम, द ब्यूटी पार्लर, दैट वाज द फर्स्ट ब्यूटी पार्लर। सो सी स्टार्टेड द फर्स्ट ब्यूटी पार्लर। उनकी श्रृंगार करने लगी। नकुल सहदेव जो थे घोड़े घोड़े के इनके चक्कर में रहे, और ये जो बिरनल था ये वैसे ही इधर उधर घूमते रहता था, क्योंकि ये नपुंसक बन गया था 1 साल के लिए। कहीं से दुर्योधन को पता चला कि कुछ पूरा तो नहीं है, कुछ ऐसा लगता है कि विराट के राज में कोई छुपा हुआ है। तो उन्होंने क्या युक्ति की कि एक तरफ से किसी और अपने लोगों की सेना भेजी, ताकि जो है विराट जो है अपनी सेनाओं को लेकर वहां जाकर लड़ाई करे और यहां हम के साथ धन संपत्ति लूट लें, और अगर पांडव हुए तो बचाने की कोशिश करेंगे और वो पकड़े जाएंगे और उनको फिर 12 साल का वनवास। यही हुआ। जब विराट पे आक्रमण हुआ, विराट अपनी सेना को लेकर के चला गया। यहां से एक और पार्टी आई, इन्होंने उसकी लाखों गायों को लूट लिया। जब गायें लूट रहे थे तो हमेशा विराट कहता था, मेरा उत्तम ऐसा, मेरा उत्तम वैसा, बड़ा पराक्रमी और ये सो, अपने बच्चे की सब तारीफ करता है। इसकी भी तारीफ होने लगी। तो यहां शैलेंद्र ने कहा, बिरनल को कहा कि देखिए हम जिसका नमक खाते हैं, युधिष्ठिर महाराज वहीं थे, कंक बन के रहते थे। तो बोले कि क्या करें। बोले ठीक है छुटा के लाते हैं, लेकिन लड़ाई कौन करेगा। तो उत्तम को कहा, शैलेंद्र को, उत्तम को, कि ये जो बिरनल है ना, ये कभी अर्जुन का रथ हाँका करता था, तो ये तुम्हारा रथ हाँकेगा, तुम पीछे से जाके आक्रमण करो और अपने गांवों को चुटा के ले जाओ। तो उत्तम ने आनाकानी करने के बावजूद भी कि ठीक है। तो बिरनल यहाँ जो है अपने हाथों में जब ये श्रृंग पहनने लगा, आयुध पहनने लगा, तो उल्टा सीधा लगाए। उत्तम हंसे, ये क्या, इसने अर्जुन का कहाँ इसने रथ चलाया होगा, इसको ये पहने भी नहीं आते। खैर कैसे करके अर्जुन उनका सारथी बना, उत्तम पीछे था। उत्तम ने कहा चलो सेनयोर भयोर मध्य। अर्जुन ने हाँका, लेकिन जब वहां जाकर के ना, तो यहां शैलेंद्र ने कहा कि देख, उत्तम को मालूम, लेकिन मेरे को मालूम है तेरी जीत जरूर होगी। तो अर्जुन ने कह दिया, प्यारी पत्नी थी, तेरे को गिफ्ट में क्या लाऊं, बताओ क्या लाऊं तेरे लिए। तो शैलेंद्र ने कहा, द्रौपदी ने कहा कि सुना है कुरुवंश के जो राजा और जो इनके प्रिंसेस हैं, इन लोगों के जो उत्तरीय होती है बड़ी शानदार उत्तरीय होती है, तो मेरे लिए उनकी उत्तरियां लेके आना। तो देखिए साहब, कथा याद आ जाती है, मैं कैसे चुप रहूं। तो उत्तम को लेके गया। जैसे ही उत्तम को यह पता चला कि सामने उनके रथ दिखाई दे रहे हैं, जब उन्होंने उनके ध्वजों को देखा, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, भीष्म है, इनको देख करके वो हतप्रस्त हो गया और बिरनल को कहा वापस लेके जाओ। अरे गायें कोई बात नहीं है, ले जाने तो गायें, क्या पड़ता गायें लेके के, तो हम अपनी जान थोड़ी गंवानी। और वापस चलने को कहा। तो बिरनल ने कहा कि देख, अगर तू डरता है तो तू रथ हाँक, और मैं तेरे धनुष बाण से जो हूं गायों को छुटाने की कोशिश करता हूं। बहुत लंबी कहानी है। खैर, उत्तम ने रथ हाँका। बिरनल जो अर्जुन था उसने इनको हराया, और इस हार में कर्ण का एक पुत्र मारा गया। सब लोग धराशायी हो गए, सब लोग बेहोश हो गए।
तो अर्जुन ने चुन चुन करके भीष्म पितामह, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और गुरु द्रोण का उनकी उत्तरें निकाली और अपने गायों को लेकर के वापस आ गए और अपनी पत्नी को भेंट किया। अब जब इनको यहां होश आया तो द्रोण ने कहा, ये अर्जुन है, अर्जुन के अलावा कोई नहीं हो सकता है, किसी में इतनी शक्ति नहीं जो हमको हरा सके। ये द्रोण, ये जो है अर्जुन है, ये अर्जुन है। और बड़े सब खुश हो गए कि ये मिल गए, पांडव मिल गए, 12 साल का और वनवास। भीष्म पितामह ने कहा, अरे मूर्खों, ये जो है महाप्रतापी, पांडव महाप्रतापी हैं। आज 13वें साल का अज्ञातवास का आखिरी दिन है और इस प्रकार वो अपने 13 साल पूरे कर चुके हैं, उनको दोबारा जंगल में नहीं जाना पड़ेगा। फिर बड़ी गणना करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पथरी देखते हैं, पता चलता है यार वाकई 13वां साल का आखिरी दिन है। तो यहां जब आते हैं, विराट वापस आता है, विराट को पता चलता है कि मेरा पुत्र उत्तम जो है कौरवों की सेना को हराकर अपनी गायों को छुड़ा के लाया। तो बड़ा खुश हुआ। युधिष्ठिर महाराज सामने बैठे हैं और ये कहते हैं कि मेरा पुत्र ऐसा, मेरा पुत्र ऐसा। और युधिष्ठिर महाराज कहें, हाँ हाँ, क्योंकि बर्नर साथ में था ना, उसने ऐसा किया। बोला हाँ हाँ, बर्नर साथ में था ना, बर्नर साथ में था ना। तो यहां विराट को गुस्सा आया कि यार बर्नर, वो नपुंसक, मेरे बेटे ने सब छुड़ाया है। लेकिन फिर वो हाँ बर्नर साथ में था ना, तो विराट को गुस्सा आया और विराट ने जोर से मुक्का मारा उनकी नाक पे। और जब युधिष्ठिर महाराज के नाक से खून बहने लगा, यहां से भीम आए, भीम ने अपनी मुंजली पे रखा और खून को नीचे नहीं गिरने दिया, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा की थी अगर मेरे भाइयों का खून जमीन पर गिरा तो मैं उसको निस्तर नाबूद कर दूंगा। लेकिन विराट ने उनको जो है शरण दी थी, तो उसको कैसे मार सकते थे? तो खून अपनी उंगली पर उठाया और उनको बचाया। इतने में बृहनल आगे, वो इतने में बृहनल के साथ उत्तम आ गया। विराट खुशी के मारे खुश होकर अपने बच्चे को चूमा कि धन्य है ऐसा बेटा जिसने कौरवों को हरा दिया। तो उत्तम कहता है, हाँ, क्योंकि बर्नल साथ में था ना। उनको बड़ा धक्का लगता है, ये बर्नल कौन है? क्योंकि 13 साल पूरे हो चुके थे, शाम की बात थी। इन्होंने अपने आप को फिर सब बताया कि हम कौन हैं। और विराट को इतनी गलती के एहसास हुआ कि कहने लगा, ये उत्तम की जो बहन उत्तरा है, मैं तुमसे इसकी शादी करा दूंगा। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसको बहू बना करके जरूर लेके जाऊंगा। शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी बेटी जैसे है, शादी नहीं, लेकिन इसको बहू बना के जरूर लेके जाऊंगा। अर्जुन ने उसे डांस सिखाया, बेटी समझ के। हाँ, अर्जुन ने उसको डांस वांस सिखाया था ना। बेटी कथा, समझ के। मैं कथा छोटी कर रहा हूँ ना, इतनी लंबी कथा तो कम से कम 2-3 घंटे चाहिए। और इस प्रकार उत्तारा को अभिमन्यु की पत्नी बनाया गया। और इस प्रकार आज अर्जुन कह रहे अपने भाषा से कि वो सेना में, जिस सेना में भीष्म जैसा प्राकर्मी, द्रोण जैसा गुरु, उनको मैं हरा पाया क्योंकि भगवान की मेरे ऊपर विशेष कृपा थी। और इस प्रकार याद कर रहे हैं कि कृष्ण, अगर तू नहीं तो मैं नहीं। और आज हम सब, जो कोई हो, जो कोई प्राणी हो, पेड़ हो, पौधे हो, नदी हो, झरने हो, बादल हो, मया दक्षिण प्रकृति सुयते चराचरम, सब भगवान की आज्ञा पे ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम मानव समाज में हमें भूल जाते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें जिज्ञासा ही नहीं है
कि हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है और मृत्यु के उपरांत क्या होता है। किसी को कोई न समझ है, न कोई समझने की कोशिश करता है, कुछ नहीं। वो तो भला हो LIC ऑफ इंडिया का कि बोलते हैं पॉलिसी ले लो क्योंकि एक दिन तुम मर जाओगे। भाई पॉलिसी ले लो, अपने बच्चों के लिए कुछ धन छोड़ के चले जाओ। तो उनकी वजह से लोगों को पता चलता है कि हाँ यार मृत्यु भी होती है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो मृत्यु का किसी को आभास नहीं होता, और जिस किसी को मृत्यु का आभास नहीं है वो भगवान की शरणागति नहीं जा सकता। ये है प्रॉब्लम इस भौतिक संसार की। आइए टेक्स्ट 15 भी मैं ले लेता हूँ। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूस्व अध्र अभद्र राजन् वर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रेचरो मम विभोरथ यूतपानाम आयुर्मनासि चर्दृशा सवोज आर्चत। मैं डायरेक्ट इसकी ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। अर्जुन कहते हैं, एकमात्र वही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। हरे कृष्ण। आई विल टेल सर्वबंदे टू रीड दिस प्रपोर्ट। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं और इस तरह स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। भगवत गीता 15.15 परमेश्वर होने के नाते वे जब कि जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं, इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसीलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतएव उस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था। सामान्यतया ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली गुप्तचरी सैन्य निपुणता तथा राजनयिक दांव पेंच द्वारा संपन्न की जाती हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे। अतएव भगवान ने स्वयं यह सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि ऐसी होती है। हरे कृष्णा। तो अर्जुन फिर कह रहे हैं कि एकमात्र वही थे जिन्होंने सबकी आयु को छीन लिया। श्रीमद् भागवत ने बता दिया हमें, आयुर् हरति वै पुंसाम यद् चनुसौ तस्य रते क्षीणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। हर जीव का सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त होने से
जिंदगी का एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन उनका नहीं जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े साधु और सन्यासी, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, क्योंकि जितना समय उन्होंने भगवान की याद में, भगवान के भजन में गुजारा, तो उनकी आयु नहीं जोड़ी जाती है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनसो तशर्यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक पार्थया। तो जो व्यक्ति, जो जीव हर पल हर घड़ी भगवान के नाम का स्मरण करेगा, लीलाओं का स्मरण करेगा, श्रवण करेगा या प्रवचन करेगा, उतने क्षण उसकी आयु में नहीं जुड़े जाएंगे। इसलिए प्राय भक्तों की आयु, पंडितों की आयु बड़ी लंबी होती है, क्षत्रियों की आयु बहुत कम होती है, और जो वैश्य लोग हैं वो तो बेचारे बीमारी से वैसे ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये श्रद्धा क्षणो उत्तम श्लोक वार्तया। इसलिए कहा गया है हर पल हर घड़ी हर समय आपको भगवान की ही याद करनी पड़ेगी। अगर किसी की बड़ाई करनी है तो भगवान की बड़ाई करनी चाहिए, और अगर किसी की बुराई करनी है, देखो हम बिना बुराई के नहीं रह सकते हैं। अगर किसी की बुराई करनी है तो स्वयं की बुराई कीजिए। तो इस प्रकार अर्जुन कहते हैं कि भगवान की कृपा से यह सब कुछ हो सका। पूरी महाभारत की जो लड़ाई हुई 17.5 दिन की हुई, इसमें 11 दिन भीष्म पितामह लड़े, 3 दिन गुरु द्रोण लड़े, 3 दिन कर्ण लड़े, एक या आधा दिन जो है अश्वत्थामा लड़ा, मतलब इंचार्ज बन करके, और शल्य लड़े, और इस प्रकार 18 दिन में ये खत्म हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महाभारत युद्ध में 1,660,000 and no 1,660,020,000 people died। करोड़ों की संख्या में। और बच कौन गया? एक अक्षौणी सेना। किसकी? ये थी यदु की सेना, जो अजेय थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। बाकी पूरी 17 की 17 अक्षौणी सेना सब समाप्त हो गई। तो एक बार जब अर्जुन, आखिरी दिन था, और बार बार कृष्ण कहते थे कि आहा, कर्ण जैसा प्रतापी कोई नहीं। तो अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आप क्या बात करते हैं आप? मैं जब भी कर्ण पे बाण मारता तो उसका रथ जो है 2-3 पीछे जाता, लेकिन जब उसके बाण आते मेरा रथ पीछे नहीं उठता। आप कैसे कैसे महायोद्धा था? भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि इस रथ पे मैं बैठा था, इस रथ पे ध्वज में हनुमान बैठे थे, ये कैसे पीछे जाता? और अगर यकीन ना हो तो जितने भी बाण इस रथ पे लगे हैं, आओ हम दोनों नीचे उतरते हैं। जब दोनों नीचे उतरे तो उस रथ का इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि सब लोग हच्चे बच्चे रह गए, हक्के बक्के रह गए। इतना बड़ा ब्लास्ट। भगवान ने कहा, ये मेरी वजह से है। योग क्षेमम भाम्यहम्। हे अर्जुन, ये मेरे द्वारा निमित्त मात्र भविष्य शाचन, तुम समझ एक निमित्त मात्र हो, समय ने कराया है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए, इतने लोग मरे, वो गए कहां? ये सारे के सारे लोग स्वर्ग गए।
लेकिन अगर ये भगवान के हाथों मारे जाते तो सबको वैकुंठ की प्राप्ति होती। लेकिन जो शास्त्र अनुसार क्या था, युद्ध में मारा जाएगा, भगवान के हाथ में युद्ध में मारा जाएगा, इसलिए भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि सबको फिर स्वगति प्राप्त हो जाती, फिर कर्म बंधन कहां से खत्म हो जाता। तो भगवान ने शस्त्र नहीं उठाए अर्जुन के द्वारा। ये अलग, आप महाभारत पढ़े तो सबको मालूम है कि भीष्म ने कितने मारे, द्रोण ने कितने मारे, सबकी ये पूरी कहानियां हैं, लंबी कहानियां हैं। और इसमें 25,600 जो तकरीबन जो लड़ाकू थे, ये पश्चिम देश की ओर भाग गए। और अगर आपने देखो जितने यूरोपियन हैं वो बड़े हट्टे कट्टे डील डॉल के बड़े तगड़े, ये सारे के सारे भागे हुए क्षत्रिय हैं जो तब पाश्चात्य देशों में बस गए। 25,000, बाकी सब समाप्त। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं जीत पाया क्योंकि भगवान साथ में थे। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति धूर्वार नीतिर्मतिर्मम। ये संजय कह चुके हैं, मेरी मति है, मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है। जहां भगवान कृष्ण होंगे, जहां अर्जुन होगा, अर्जुन का मतलब यहां पे भक्त। कैसा भक्त? अनन्य भक्त। आपको मालूम है अनन्य भक्त किसको कहते हैं? अनन्य भक्त किसको कहते हैं? कथा सुनो, बोलिए, कथा सुनोगे? राधिका माता जी को पूछो। तो कोई नहीं बोल रहा तो बोला कथा नहीं सुनाऊं? राधिका माता जी को पूछना। तो सुनाओ कि नहीं? नहीं सुनाइए। एक बार वल्लभाचार्य उदयपुर से मथुरा आए। और जब मथुरा आए तो एक वहां वृंदावन वासी था। जब इनकी डोली आ रही थी गोसाई जी की, तो सबने कहा अरे भागो भागो भागो, अनन्य भक्त आ रहे हैं, अनन्य भक्त आ रहे हैं, अनन्य भक्त आ रहे हैं, अनन्य भक्त आ रहे हैं। तो ब्रजवासी ने बोला यार अनन्य भक्त क्या होता है? तो उससे कहा भाई अनन्य भक्त क्या होता है? तो प्रश्न पूछ लिया, किससे? बल्लभाचार्य जी से प्रश्न पूछ लिया कि प्रभु बताएं अनन्य भक्त क्या होता है। बोले देखिए अनन्य भक्त है जो शिव की पूजा ना करे, दुर्गा की पूजा ना करे, चंद्र की पूजा ना करे, वरुण की पूजा ना करे, सूर्य की पूजा ना करे, शनि की पूजा ना करे, वरुण की पूजा ना करे, जो सिर्फ कृष्ण की पूजा करे वो है अनन्य भक्त। तो बल्लभाचार्य ने कहा तुम कौन? बोला मैं फनन्य भक्त। तो बल्लभाचार्य जी ने पहली बार जिंदगी में सुना कि फनन्य भक्त। उन्होंने बोले भैया ये फनन्य भक्त क्या होता है? अरे बोला जो शिव को ना जाने, जो दुर्गा को ना जाने, जो सूर्य को ना जाने, जो चंद्र को ना जाने, जो देवी देवताओं को ना जाने, जो सिर्फ कृष्ण को जाने, उसको कहते हैं फनन्य भक्त। यहां महाराज ने क्या कहा था? जो उनकी पूजा ना करे, इनकी पूजा ना करे, बोलता है जो जाने ही नहीं, हम तो किसी को जानते नहीं है, इसलिए भाई हम तो फनन्य भक्त हैं। तो यथा भक्त बनिए, ये फनन्य भक्त बनिए। और जब आप भक्त बन जाएंगे तो भगवान तो आपकी मदद करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धन देगा, दौलत देगा, आपकी बीमारियां दूर करेगा, ये नहीं। क्या देगा भगवान? स्मृति। कौन सी? अंते नारायण स्मृति है। यह धन है, यही वैभव है। पैसा तो आपने भी कमाया, सबके बैंक में पड़े हुए, कौन खा रहा है? आपने अपने अपने मुल्क में बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाए होंगे, ताला बंद करके, वहां जो है चींटियां घूम रही हैं, कॉकरोच घूम रहे हैं, करोड़ों आपने लगाया, मजे वो कर रहे हैं। तो ये धन वैभव ये संपदा नहीं है। संपदा है भगवान की याद। और भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम है, वो मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे। और यही तो चाहिए। जीवन तो आना और जाना है।
लेकिन अगर अंते नारायण स्मृति हो गई तो वाह, जीवन सफल हो जाता है। आइए मिलकर हम भी कहें, अपने गुरुजनों से प्रार्थना करें कि अगर हर समय नहीं तो दिन में कुछ पल कृपा करें कि हम भगवान की याद कर सकें, भगवान के चरणों में भगवान के भक्तों का संग मिले, यही कामना है। भगवान की कथाएं सुन सकें, भगवान की कथाएं बोल सकें, बस इतना ही चाहिए। बाकी करने वाला भगवान है, वो वही करेगा जो हमारी इच्छा होगी। इच्छा द्वेष समुत्व है ना, द्वंद्व मोह न भारत। जब तक हमारा द्वंद्व नहीं जाएगा हम भक्त नहीं बन पाएंगे। जब तक हमारा अहंता ममता नहीं जाएगी भक्त बना बड़ा मुश्किल है। ना हम वैदेर न तपसा न दान न चेजया सख्य एवं दृष्ट विदुम दृष्टवान अशिमाम यथा भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। तो भगवान को जानने का यही तरीका है, स्वाध्याय करें, गुरुजनों की वाणी सुन। और आजकल तो कितना मजा आ गया, आप हर पल आप गुरुजनों की वाणियां सुन सकते, कितना मजा है आजकल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस प्रकार हमारे दिनचर्या निकल जाए तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। हरे कृष्णा।